वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले जेनरिक इलेक्टिव हिस्ट्री दिल्ली थ्रू दी एजेस फ्रॉम कॉलोनियल टू कंटेम्प्रेरी टाइम्स, यूनिट सेकंड, बिल्डिंग न्यू दिल्ली इंपीरियल आइडियोलॉजी एंड अर्बन मोर्फोलॉजी। ये वीडियो बीए ऑनर्स इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट के लिए होगी फॉर सेमेस्टर 2। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप बेटर एक्सपीरियंस के लिए वीडियो को 1.25x की प्लेबैक स्पीड पर करके देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। इंट्रोडक्शन। न्यू दिल्ली वॉज मेड द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया in 1911 at the coronation darbar of King George V. The announcement by King George V to shift the seat of the government of India from Calcutta to Delhi represented a complex vision of the colonial state to pacify Indians and simultaneously bound them more closely to the British Empire. New Delhi was meant to be the masterpiece in colonial town planning and colonial architecture. Its exact location, structure and design to link both the old and the New Delhi and meticulously controlled road were skillfully combined to make the capital a new sanctuary of British Empire. जो न्यू दिल्ली थी वो ब्रिटिश इंडिया की 1911 में कैपिटल बनी, जब किंग जॉर्ज फाइव का कोरोनेशन हुआ, यानी जब वो किंग बने जॉर्ज फाइव जो थे, उनके अनाउंसमेंट पर ही जो कैपिटल की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सीट थी वो कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हुई। और इसका विजन कॉलोनियल स्टेट को इंडिया में एक मोर लेवल पर बिल्ड करना था। न्यू दिल्ली जो थी वो एक मास्टरपीस कॉलोनियल टाउन प्लानिंग के अंडर आती थी और कॉलोनियल आर्किटेक्चर जो था इसका काफ़ी अच्छा बनाया गया। और ये वही लोकेशन है जहाँ पर ओल्ड दिल्ली और न्यू दिल्ली के जो डिज़ाइन है, आर्किटेक्चर है, उनको कंबाइन किया गया और ये एक नई ब्रिटिश सेंचुरी बनी। Town planning. In the early era of 20th century, the Delhi municipality was grappled with problem creating by the imperial government in three respects: the railway expansion, the army requirements, and the exigencies of two darbars within a short period. There was not enough revenue for the rapid pace of public health and environment improvement measure. The shifting of the capital to Delhi further imposed strains on the municipal service. For Delhi, the transfer had social and political implication and financial engineering requirement. The shift of bureaucratic and legislative machinery was bound to be followed by an influx of the political pressure group active in Bengal, the United Provinces and Punjab. To meet these requirements, the government assigned areas intended for the new city and the cantonment and reserved a large part of Delhi province. The Delhi enclave, later known as province, was 12,090 square miles and included Delhi district and part of the territory of United Provinces across the Yamuna. The town planning committee recommended acquiring a large area for the extension of the city and civil lines and firm control over building activity in the environs of New Delhi. The town planning committee, headed by Edwin Lutyens, had complete freedom to choose the site for the new capital. The committee saw the site south of Shahjahanabad as the most suitable site for the new city. It was possible to acquire 10 square mile for the city and 15 square mile for the new cantonment. The site near the Raisina village was deemed suitable for health reason for its proximity to the river, its undulating land and many archaeological sites. Narayana was chosen as a site for the cantonment as the cost of land was low and no business interest would have to be moved. जो दिल्ली जब कैपिटल शिफ्ट हुई दिल्ली में, तो जो आर्किटेक्चर थे, जो म्यूनसिपैलिटीज़ थी, उनको काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। जैसे कि जो इमीडिएट शिफ्ट था दिल्ली की तरफ, उसमें कई सोशल और पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन थी और कुछ उनकी फाइनेंशियल एंड इंजीनियर रिक्वायरमेंट थी और इसकी वजह से उन पर प्रेशर बना और जो गवर्नमेंट थी उन्होंने अलग अलग एरिया डिसाइड किए। लेकिन जो ये थे एडविन लुटियन, उनको वो एक आर्किटेक्चर थे, यानी कि जो टाउन प्लानिंग कमेटी थी उनके हेड थे और उनको कंप्लीट फ्रीडम दी गई फॉर चूज अ साइट फॉर न्यू कैपिटल इन दिल्ली।
और उन्होंने जो कमेटी थी उन्होंने साउथ ऑफ शाहजहानाबाद को काफ़ी सुटेबल साइट समझा न्यू सिटी के लिए, और उन्होंने वहाँ पर 10 स्क्वायर मील्स की एरिया और 15 स्क्वायर मील्स का एरिया एक्वायर किया। 15 माइल स्क्वायर का एरिया जो था वो न्यू कैंटोनमेंट के लिए एक्वायर किया गया था। और जो साइट थी वो नियर रायसीना विलेज के लिए विलेज के पास थी, जो कि सुटेबल थी हेल्थ रीजन के लिए। और यहाँ पर रिवर भी थी। तो और कुछ वहाँ पर पास पर आर्कियोलॉजिकल साइट्स भी अवेलेबल थी। Architecture. The new city was to be built south of the old city. The new city was charged with symbolic meaning from the outset, and the two architects, Edwin Lutyens and Herbert Baker, had a thought-out set of objectives in their design. Thomas Metcalfe is the view that although Lutyens was the chief designer and architect, the design of Baker are central to the understanding of the architect of New Delhi. जो न्यू सिटी थी वो ओल्ड सिटी के साउथ में बिल्ड की गई थी, और जो न्यू सिटी थी उसके लिए उसका एम्बॉलिक चार्ज जो इसके लिए दो आर्किटेक्ट्स थे जैसे कि एडविन लुटियन और हार्वर्ड बेकर। उनके पास सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव थे डिज़ाइन के, और थॉमस मैटक्लिफ थे, उनका एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू था। और जो लुटियंस थे वो चीफ डिज़ाइनर एंड आर्किटेक्चर थे, और बेकर जो थे वो सेंट्रल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ न्यू दिल्ली। और बेकर जो थे वो साउथ अफ्रीका से निकल गए थे 1912 में ऑन द इन्विटेशन ऑफ एडविन लुटियन फॉर ज्वाइन द बिल्डिंग ऑफ न्यू दिल्ली। लुटियन ने जो पूरा चार्ज लिया न्यू सिटी का लेआउट क्या होगा, क्या उसके डिज़ाइन होंगे, वायसराय का हाउस कैसा होगा, ये सारा आर्किटेक्चर जो था वो एडविन लुटियन ने डिज़ाइन कर लिया था पहले ही। और बेकर को आने पर एक सेक्रेटेरियन ब्लॉक्स का चार्ज दिया गया, और जो सेवरल डिसीजन थे वो पहले ही ले लिए गए थे। और जो न्यू सिटी थी वो बिल्ड हुई थी साउथ ऑफ द ओल्ड सिटी। द वायसराय हाउस ऑन द सिटाडेल ऑफ द रायसीना हिल्स was to be planned focus, and Indian style of architecture was inappropriate to British imperial capital. According to एडविन लुटियन, उन्होंने साउथ ऑफ द ओल्ड सिटी को चूज़ किया वायसराय हाउस के लिए। जो रायसीना हिल्स का सिटाडेल था वहाँ पर उन्होंने वायसराय हाउस के लिए मतलब उनका वहाँ पर फोकस था। और जो बिल्डिंग थी उसका जो आर्किटेक्चर था वो इंडियन स्टाइल में रहना, अगर वो इंडियन स्टाइल में होता तो वो काफ़ी इनअप्रोप्रिएट होता फॉर ब्रिटिश इम्पीरियल कैपिटल, ऐसा एडविन लुटियंस का मानना था। लुटियन, बेकर एंड लॉर्ड हार्डिंग agreed that New Delhi, a manifestation of British imperial position in India, should have imperial architecture. लुटियन और बेकर और लॉर्ड हार्डिंग का मानना था कि जो न्यू दिल्ली है वो एक मैग्निफिसेंट ब्रिटिश एम्पायर है, और उसकी पोजीशन को शो करने के लिए वहाँ पर एक इम्पीरियल यानी कि भव्य आर्किटेक्चर होना चाहिए बिल्डिंग का। हार्डिंग अर्ज्ड द यूज ऑफ ईस्टर्न स्टाइल, प्रेफरेबली इंडो-स्कैरेनिक, ड्यू टू इट्स हिस्टोरिकल एसोसिएशन विद दिल्ली एंड इट्स नेबरहुड। जो हार्डिंग थे उन्होंने अर्ज किया कि जो बिल्डिंग का स्टाइल होगा, जो आर्किटेक्चर होगा वो ईस्टर्न स्टाइल पर हो, प्रेफरेबली इंडो-स्कैरेनिक, क्योंकि उसकी हिस्टोरिकल एसोसिएशन जो थी दिल्ली और उसके नेबरहुड के साथ वो रिफ्लेक्ट करे। ही इंस्टेड दैट द आर्किटेक्ट्स incorporate the pointed Mughal arc in their design. Harding desired to make the new imperial capital acceptable to Indian subject. जो हार्डिंग थे उन्होंने कहा कि जो आर्किटेक्ट होगा वो मुगल आर्क की तरह का डिज़ाइन होगा उसमें, और वो ये चाहते थे कि जो न्यू इम्पीरियल कैपिटल बन रही है ब्रिटिशर्स की वो इंडियन सब्जेक्ट्स को भी एक्सेप्टेबल हो, यानी कि जो इंडियन लोग थे उनको भी एक्सेप्टेबल हो। लुटियंस ऑन द अदर हैंड एडहेयर टू यूरोपियन क्लासिज्म। जो लुटियंस थे वो ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे यूरोपियन क्लासिज्म आर्किटेक्चर को। उनका मानना था कि इंडियन आर्किटेक्चर जो है उसमें कोई ऑथेंसिटी नहीं है और ना ही वो कोई ग्रेट ट्रेडिशन है। द इंडियन बिल्डिंग वर पिक्चर्स्कू एंड डेकोरेटिव बट लैक द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आर्किटेक्चर। जो लुटियंस थे उनका कहना था कि इंडियन बिल्डिंग जो है वो पिक्चर्स्कू यानी कि दिखावटी है और डेकोरेटिव है। जो बेसिक प्रिंसिपल होते हैं आर्किटेक्चर के उनकी इंडियन आर्किटेक्चर में कमी होती है अकॉर्डिंग टू लुटियंस। As construction proceeded, Lutyens' Viceroy House
incorporated several Indian features too. The strong horizontal line of building are reinforced by cornice with a chhajja, while sunken chhatris punctuate the roof line and elephant sculpture mark the entrance gateway. वहीं पर जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ तो लुटियंस का जो वायसराय हाउस जो उन्होंने मतलब डिज़ाइन किया था उसमें कुछ उन्होंने इंडियन फीचर्स भी डाले, जैसे कि स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल लाइन बिल्डिंग में और छज्जा इंक्लूड किया और शंकन छतरीज पंक्चुएट द रूफ लाइन और एलिफेंट स्कल्पचर जो थे वो गेटवे पर मार्क किए गए. द वायसराय हाउस वाज plain, austere, massive with Indian detail transformed by Lutyens' imagination. The secret of Baker shows a more direct grafting of the Indian motifs onto its classic surface. The building of New Delhi were meant to connect British rule with India's imperial past and at the same time evoke a sense of pride in the accomplishment of the British Raj. The British chose a classic style for New Delhi, connect their monuments to the idols imperials of classic antiquity to enhance the moral worth of their political handiwork. जो लास्ट में जो डिज़ाइन मतलब बिल्डिंग का जो डिज़ाइन क्रिएट किया गया वो एक इंडियन डिटेल पर था, यानी कि उसमें इंडियन क्लासिक आर्किटेक्चर था उसकी काफ़ी रिफ्लेक्शन थी. और जो ब्रिटिश थे वो मानते थे, उनका मानना हुआ कि जो इंडियन एम्पीरियल होगा वो कनेक्ट करे ब्रिटिशर्स के साथ, जिससे कि वो अपने आप में एक सेंस ऑफ प्राइड को इवोक कर सके फॉर देयर ब्रिटिश राज. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.